Good morning students, I am Amit Malvi and this is your class 12 and this is your video related to general studies. आप सभी को मालूम है कि आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर होने वाला है, तो उससे रिलेटेड मैं यहाँ पर एक वीडियो बना रहा हूँ. सो स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो में जो टॉपिक हमने लिया है वो टॉपिक आपका यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर आपके शो हो रहा है कि विंडोज़ एक्सप्लोरर, व्यू फाइल, बेसिक. मैं यहाँ पर फाइल ऑपरेशन और नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी या डिजिटल टेक्नोलॉजी, इन दोनों को मैं यहाँ पर इन्वॉल्व कर रहा हूँ और मैं इससे रिलेटेड वीडियो जो बना रहा हूँ इसे आप केयरफुली लिसन करिए. Okay students, so pay attention. The topic is performing basic file operation. What is a file operation? You know, file operation are deleting a file, inserting a file, cut, copy, paste, renaming a file, etc. These are file operation. Okay, now you can do file operations using the Windows Explorer. Windows Explorer is an application software where you can do all the file operation. Clear students? But how will you open it? You can open it choosing Start button, All Program, Accessories and Windows Explorer. Okay. Now when you click on Windows Explorer, it will display like this. This is called your Windows Explorer. Okay students. Now next, view file and folder. So firstly, how will you see your file and folder? There are many types of options. You can see your file: extra large and large icon, medium icon, small icon, list, details, tiles and content. Clear? See this practical. Now open. This is your Windows Explorer. Okay student. Now you can using file operation, there are view. Okay, this is a extra large, a small icon, tiles, large icon, list, content, medium icon and detail. Many types of options you can use to see your file. Okay students. Now you can see in your screen. Clear? Extra large, medium, small, list, details, tiles and content. You can use if Windows 7, then it will display like here. यदि आप Windows 7 यूज कर रहे हैं तो Windows 7 में फाइल एक्सप्लोरर में यहाँ पर एक आपका आइकॉन दिया रहता है. ठीक है, व्यू आइकॉन इसे कहते हैं. And when you click on this icon, it will display all the options. Clear? Now creating a new folder. How will you create a new folder? Simply right click on your blank area. कहीं पर भी blank area में आप right click करिए. When you right click, then it will display a shortcut key. Shortcut menu आपका ओपन होगा, उसमें आप न्यू में जाइएगा. Okay, in your new option you can find the folder. Clear? Now I will see you this. Suppose that this is your Explorer. Okay, now right click here and new. Okay, न्यू में आप कहाँ जाएंगे? ये फोल्डर पर. When you click on this folder,
Okay, you can write your name. Suppose that I write here Vikas, then press enter. Okay, it will create. Now see again, यदि आपको फोल्डर क्रिएट करना है तो सिंपली क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, माउस का राइट बटन क्लिक करिएगा। राइट बटन क्लिक करने पर आपको न्यू ऑप्शंस मिलेगा। न्यू ऑप्शन में आपको मिलेगा फोल्डर ऑप्शंस। ठीक है, जब आप फोल्डर ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। फिर से देखिए, राइट क्लिक, न्यू ऑप्शंस, यहां हम फोल्डर पे गए और जैसे हम फोल्डर पर क्लिक करेंगे ये हमारा देखिए फोल्डर क्रिएट हो गया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ रीनेमिंग अ फोल्डर। फोल्डर को रीनेम करने के लिए सिंपली आप उस पर राइट क्लिक करिए। जैसे ये फोल्डर, इसका नेम चेंज करना चाहते हैं, आई वांट टू चेंज दिस नेम, नाउ सिंपली राइट क्लिक, माउस का राइट बटन हमने क्लिक किया। राइट बटन क्लिक करने पर आपको मिलेगा रीनेम ऑप्शन। यू कैन फाइंड द रीनेम ऑप्शन। ओके, नाउ डिलीट बटन प्रेस करिए और यह इज राइट योर नेम। सपोज दैट हमने नेम लिखा अजीत। ओके, नाउ प्रेस एंटर। क्लियर? ये तो क्लियर ही हो गया, रीनेमिंग अ फोल्डर एंड क्रिएटिंग अ फोल्डर। नाउ मूविंग एंड कॉपिंग अ फोल्डर। मूव और कॉपी के लिए आप सिंपली कट, कॉपी और पेस्ट का यूज कर सकते हैं। आप इसका यूज अच्छे से जानते हैं कि कट मीन्स मूव कराना, कॉपी उसकी कॉपी क्रिएट करना, और पेस्ट जो है सिंपली पेस्ट करने के लिए होता है। जब आप कट कॉपी करेंगे तो उसको इंसर्ट कराने के लिए हमें पेस्ट करना पड़ता है। क्लियर? और ये सिंपली राइट क्लिक करके आप उसमें कर सकते हैं। सी दिस, सिंपली राइट क्लिक, यहां हमने कट किया, इसको इसमें मूव कराना है, राइट क्लिक, पेस्ट, हो गया। अब जब आप विकास को ओपन करेंगे देन यू कैन फाइंड द अजीत। अब यहां से उसको बाहर निकालना है, सिंपली राइट क्लिक, कट, फिर आप बैक जाइए। ठीक है, यहां आप पेस्ट कर दीजिए। देखिए विकास भी है और अजीत भी है। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ सर्चिंग द फाइल एंड फोल्डर। You can search any file or folder using the search option. But how? How will you search it? Now see this. Here is the search box. यहां पर देखिए एक सर्च बॉक्स है ना, सिंपली आप इस पर क्लिक करिए। स्टार्ट बटन के यहां पर आता है। विंडोज 7 में स्टार्ट बटन के ऊपर मिलेगा आपको। ठीक है, बट ये विंडोज 10 इसमें है आपका, हमारे लैपटॉप में। ठीक है, तो विंडोज 10 में यहां पर मिलेगा। अब जो भी आपको सर्च करना है उसका नेम यहां पर आप टाइप कर दीजिए। ठीक है, और जैसे ही नेम टाइप करेंगे वो आपको यहां पर सर्च करके दे देगा। ठीक है, जो भी नेम आपको सर्च करना है। ठीक है, और सिंपली आप उस पर क्लिक करिए, वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? सिंपली आप उसमें सर्च करने में वाइल्ड कार्ड का भी यूज कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाइल्ड कार्ड, एस्ट्रिक्स एंड क्वेश्चन मार्क। जब हम वाइल्ड कार्ड का यूज करते हैं तो जैसे सपोज दैट कोई फाइल का नेम आर से स्टार्ट है, बट हमें उस फाइल का पूरा नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है, तो आप आर लगाइए, आफ्टर दैट यूज दिस वाइल्ड कार्ड, यानी एस्ट्रिक लगा दीजिए। एस्ट्रिक मीन्स होता है मोर देन वन कैरेक्टर। अब मोर देन वन कैरेक्टर, जितने कैरेक्टर की भी वो फाइल होगी आपके सामने वो रख देगा। बट यदि हम इस क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं तो क्वेश्चन मार्क मीन्स होता है कि ओनली वन कैरेक्टर। ठीक है, देखिए इसका भी हम यूज करके दिखाते हैं आपको। यहां पर गए, हमने लिखा आर और उसके बाद हमने एस्ट्रिक लगा दिया। ठीक है, अब देखिए आर से जितनी भी चीजें थी हमारे सामने आ गई। ठीक है, बट यदि हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते, ठीक है,
तो जितने क्वेश्चन मार्क लगाएंगे उतने करेक्टर की फाइल को वह केवल सर्च करके देगा। क्लियर? ओके, या आप लोग अपने पीसी में इसका यूज करिएगा अच्छे से, तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज अ सर्चिंग अ फाइल फोल्डर। नाउ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट फाइल फॉर्मेट। फाइल फॉर्मेट क्या होता है? व्हाट इज अ फाइल फॉर्मेट? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल हैव इन योर सिस्टम, ठीक है, बट सिस्टम कैसे जानेगा कि यह फाइल किस टाइप की है? ठीक है, तो सिस्टम को समझने के लिए हम फॉर्मेट का यूज करते हैं। जैसे यदि हम डॉक्यूमेंट में फाइल सेव करते हैं, मींस एमएस वर्ड में, तो एमएस वर्ड में उसका एक्सटेंशन नेम होता है .doc। आप जानते हैं कि फाइल नेम जब हम देते हैं तो फाइल नेम हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्राइमरी नेम एंड एक्सटेंशन नेम। प्राइमरी नेम में हम सिंपली फाइल का नेम देते हैं, एक्सटेंशन नेम वह ऑटोमेटिक क्रिएट कर लेता है। ठीक है, जैसे हमने वर्ड में फाइल क्रिएट की अमित नाम से, ठीक है, तो उसके आगे वह .doc क्रिएट कर लेगा। इस समय जो लेटेस्ट वर्जन आपका विंडोज 10K में जैसे ऑफिस 10 वगैरह है, उसमें docx का यूज हो रहा है। ठीक है, doc आपका पुराना वर्जन हो गया, docx आपका लेटेस्ट वर्जन हो गया फॉर्मेट का। यदि हम स्प्रेडशीट यानी एक्सेल में फाइल क्रिएट करते हैं तो उसका ये रहेगा XLS, या यहाँ पर XLSX होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर होना चाहिए था XLS, ठीक है, फिर आपका X। क्लियर? तो यहां पर ये स्प्रेडशीट हो गया। इमेज फाइल में .gif होता है, JPG फाइल होती है, PNG फाइल होती है, बहुत सारे फाइल फॉर्मेट आते हैं। जब हम आपके इसमें फाइल बनाते हैं MS Paint में, तो वह JPG फॉर्मेट में यूज होता है, सेव करता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से ऑडियो फॉर्मेट होता है, .mp3, वेव, ठीक है, AIF, बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। इसी फॉर्मेट के थ्रू वह फाइल को रीड करता है और फाइल को डिडक्ट करता है कि यह फाइल किस यूज के लिए है। क्लियर? प्रेजेंटेशन में जो फाइल फॉर्मेट होता है वह .ppt होता है या .pptx होगा। क्लियर? नाउ सॉर्टिंग फाइल्स। फाइल की सॉर्टिंग करने के लिए हम जब राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करने पर एक हमें कमांड या ऑप्शन मिलता है सॉर्ट बाय, या आपको डेस्कटॉप पर भी मिलेगा। देखिए यहाँ जब आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सॉर्ट बाय मिलेगा। यहाँ नेम है, डेट करेंगे तो यह डेट वाइज हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए सॉर्ट में टाइप करेंगे तो वही फाइल फॉर्मेट टाइप के अकॉर्डिंग उसको वह कर देगा। साइज करेंगे तो उसकी साइज वाइज वह उसको शॉर्टेड करेगा। ठीक है, सेम एज इट इज आपका लेंथ भी है। ठीक है, लेंथ मतलब उसकी कैरेक्टर की लेंथ। ठीक, क्लियर? तो यहाँ पर हम नेम वाइज कर देते हैं, जैसे था वैसे ही कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो क्लियर ही हो गया होगा आप लोगों को। ये कैसे करेंगे? सॉर्ट में जाएंगे, यहाँ चूज कर लेंगे। क्लियर? तो चलिए अब नेक्स्ट कर चलते हैं। फाइल ऑपरेशन यूजिंग कीबोर्ड। बहुत सारे ऑपरेशन शॉर्टकट की के थ्रू हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं एज एग्जाम्पल Ctrl+N टू क्रिएट अ न्यू फाइल, Ctrl+O ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग फाइल, Ctrl+S सेविंग अ फाइल, Ctrl+Z ये आपका अंडू के लिए होता है। जैसे कोई एक्शन हमारा हो गया, अब हमें प्रीवियस कर जाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या प्रेस करेंगे? Ctrl+Z। और रीडू करना है तो Ctrl+Y। कोई भी चीज आपको डिलीट करनी है, इफ यू वांट टू डिलीट देन सेलेक्ट इट एंड प्रेस डिलीट बटन। इंटर इफ यू सेलेक्ट एनी फाइल और फोल्डर, व्हेन यू प्रेस एंटर की देन इट विल ओपन दिस फाइल और फोल्डर। Ctrl+A selected all files and folders। क्लियर?
तो इन सब की का यूज जो है आप अपने पीसी में करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट सेशन इज योर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इन योर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फर्स्टली you know what is a network? Network is a connection between two or more than two devices to share any information, data, resources, hardware, software, etc. Clear? Then तो ये तो क्लियर हो गया कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, जिसमें हमारे डिवाइस वगैरह अटैच होते हैं जिसे हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसमें हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को भी शेयर कर सकते हैं। जैसे सर्वर हमारा क्या है, एज अ हार्डवेयर, हार्ड डिस्क क्या उसकी है, हार्डवेयर होगी। उस हार्ड डिस्क को जितने भी कंप्यूटर हमारे नेटवर्क में अटैच हैं वो सभी सॉरी यूज कर रहे हैं, ठीक है, एज अ हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर, उसमें से कोई भी एप्लीकेशंस लेके हम अपने क्लाइंट या कंप्यूटर को ओपन कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड योर सॉफ्टवेयर। ओके, नाउ एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। द फर्स्ट एडवांटेजेस इज अ हार्डवेयर शेयरिंग। यू नो, अभी हमने आपको बताया कि जैसे कंप्यूटर में क्या है कि हार्डवेयर, जैसे आपका प्रिंटर हो गया, प्रिंटर एक है, उसको हमारे एक सर्वर में 10 सिस्टम लगे हुए हैं, ठीक है, 10 सिस्टम उस प्रिंटर को यूज कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड योर हार्डवेयर शेयरिंग। उसकी मेमोरी यूज कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड योर हार्डवेयर शेयरिंग। क्लियर? सॉफ्टवेयर शेयरिंग, उसके एप्लीकेशंस को यूज करना, जैसे ऑफिस पैकेज कोई यूज कर रहा है तो कोई टैली उसमें से यूज कर रहा है, कोई पीपीटी यूज कर रहा है, ठीक है, तो ये सभी आपके सॉफ्टवेयर शेयरिंग में आएंगे। इफिशियंसी ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। नेटवर्क होने से हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो हैं उनको हमें अलग से अलग अलग पीसी में इनबिल्ड करने की नीड नहीं होती। अब जैसे क्या है, हार्डवेयर हमारा क्या हो गया, सपोज दैट प्रिंटर, अब 10 सिस्टम के लिए हम 10 प्रिंटर यूज करेंगे तो उससे बेटर है हम नेटवर्क कर लें, नेटवर्किंग कर लें एक सिस्टम से, एक प्रिंटर से। क्लियर? तो वही आपका कहलाता है इफिशियंसी ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। नाउ रिड्यूसेस रिडंडेंसी। यहां पर रिडंडेंसी मीन्स होता है कि यहां पर आपकी टाइम की भी बचत होती है, ठीक है, आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम इजीली फाइल को शेयर कर सकते हैं। क्लियर? और यहां कास्ट की भी आपकी बचत हुई। अब भाई एक सिस्टम से 10 प्रिंटर आपको लेना पड़ता है 10 कंप्यूटर के लिए, उससे बेटर है कि आप एक नेटवर्किंग कर लीजिए, उसमें आपकी कास्ट भी रिड्यूस हो गई। क्लियर? सेव पेपर एंड टाइम, ये पेपर और टाइम को भी सेव करता है। अब भाई आजकल जितने भी चीज़ें हैं ऑनलाइन सब हो गई हैं, अब ऑनलाइन फाइल सेंड कर दीजिए, ऑनलाइन बायोडाटा सेंड कर दीजिए, तो इससे क्या है कि पेपर रिड्यूस हो गया, हमारा टाइम भी रिड्यूस हो गया, बैठे बैठे हम एक ही जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं फाइल को। क्लियर? नाउ इंटरनेट शेयरिंग। इफ यू कनेक्ट इंटरनेट, यदि आप इंटरनेट से कनेक्ट हैं तो इंटरनेट भी शेयर हो सकता है। इंटरनेट आप सर्वर में यूज कर रहे हैं और वह सर्वर आपके 10 सिस्टम से कनेक्ट है, इस टाइप से आपका इंटरनेट भी शेयर हो रहा है। सिक्योरिटी, इसमें आपकी सिक्योरिटी भी रहती है। क्यों? क्योंकि सारे सिस्टम कहाँ हैं, एक सर्वर से अटैच हैं, ठीक है, कोई अदर डिवाइस उसको एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है, यानी एक ही नेटवर्क में हमारे 10 सिस्टम अटैच हैं, कोई अदर डिवाइस तो उसको एक्सेस कर नहीं रहा है, इससे हमारा क्या है, सिक्योरिटी भी बनी हुई है। क्लियर? नाउ नेटवर्क कंपोनेंट्स। इन योर नेटवर्क कंपोनेंट्स, फर्स्ट इज अ सर्वर। व्हाट इज द सर्वर? यू नो, सर्वर इज अ वेरी पावरफुल कंप्यूटर। सर्वर जो होता है वो बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड, रैम, हार्ड डिस्क, सभी चीजें नॉर्मल कंप्यूटर से बहुत ही पावरफुल होती हैं, ठीक है, तो इट इज कॉल्ड योर
server, okay, and it links all the computer, या सभी कंप्यूटर से क्या होता है, अटैच होता है। कंप्यूटर बोल सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ क्लाइंट जो सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है, इट इज कॉल्ड योर क्लाइंट। जब भी हम क्लाइंट पे वर्क करते हैं तो क्लाइंट से हम क्या करते हैं, सर्वर से कनेक्ट होते हैं, और यह क्लाइंट क्या है, सर्वर के पास रिक्वेस्ट सेंड करता है, क्लियर। और सर्वर उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स फिर क्लाइंट पर सेंड करता है, क्लियर। और हम यहाँ से जो सिस्टम चलाते हैं उसे हम रिमोट सर्विस कहते हैं, ओके। हम सर्वर से भाई डेटा ले रहे हैं, उस पर वर्क भी कर रहे हैं, तो इट इज अ रिमोट सर्विस, क्लियर। नाउ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज अ डिवाइस। यह कंप्यूटर को की फिजिकल नेटवर्किंग के लिए जो डिवाइस यूज होता है, इट इज कॉल्ड योर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। आपने IP एड्रेस नाम सुना होगा। ईच एंड एवरी कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैव ओन IP एड्रेस। तो वो IP एड्रेस इसी के थ्रू जनरेट होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के थ्रू, क्लियर। जिसके थ्रू हमारा कंप्यूटर एक दूसरे से अटैच होता है और एक दूसरे के एड्रेस को समझता है, क्लियर। नाउ मॉडेम क्या है, इट मॉड्यूलेट्स डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग एंड एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल, बिकॉज आवर कंप्यूटर नो बाइनरी लैंग्वेज, ओके। हमारा कंप्यूटर क्या जानता है, बाइनरी लैंग्वेज 0 and 1। बट जब हमारे कंप्यूटर से डेटा पास होते हैं तो वह एनालॉग सिग्नल में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे कंप्यूटर से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है, इट इज कॉल्ड योर मॉडेम। और ये जहां जाएगा वहां पर फिर से वो डेटा क्या हम कलेक्ट होंगे, कलेक्ट होने के बाद उस एनालॉग को किस में ट्रांसफर करेगा, डिजिटल में। तो वह कौन करता है, आपका मॉडेम। नाउ क्लियर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉडेम, वायरलेस मॉडेम एंड केबल मॉडेम। वायरलेस मीन्स जो वायर के थ्रू हमारे कंप्यूटर में अटैच होता है, सॉरी वायरलेस विदाउट वायर, हमने यहाँ गलत बता दिया। वायरलेस विदाउट वायर, केबल में वायर का यूज होता है, ठीक है। तो केबल में वायर का यूज करेंगे, जो सिंपली हम मॉडेम कनेक्ट करते हैं अपने पीसी से बाहर से, वो आपका केबल मॉडेम हो गया। वायरलेस मॉडेम जो वायरलेस होता है, मतलब जैसे आपका वाईफाई हो गया, ठीक है, तो वो आपका वायरलेस मॉडेम। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। इंट्रानेट refers to a computer network within an organization. It is a private network. इंट्रानेट जो होता है वह प्राइवेट नेटवर्क होता है जो किसी कंपनी के द्वारा यूज किया जाता है ओनली फॉर द ओन पर्पस, केवल अपने पर्पस के लिए। जैसे कोई बैंक हो गया, ठीक है, तो बैंक अपना एक नेटवर्क अपने जो ब्रांचेस हैं उनको प्रोवाइड करता है, ठीक है। नाउ इट इज कॉल्ड योर इंट्रानेट, ओके। और ये तो आप जानते हैं कि उसमें प्रोटोकॉल का यूज होता ही है, प्रोटोकॉल तो सब में यूज होंगे। एक होता है आपका एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट जो बैंक अलाउ करता है, प्राइवेट नेटवर्क अलाउ करता है उसकी कुछ पार्ट को एक्सेस करने के लिए, फॉर अ बिजनेस पर्पस, फॉर अ एजुकेशनल पर्पस, ठीक है। इट इज कॉल्ड योर एक्स्ट्रानेट। जैसे कि किसी बैंक का कोई कस्टमर हो गया, उसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह यूज करने के लिए जो बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो वह नेटवर्क आपका कहलाता है एक्स्ट्रानेट। क्लियर। नाउ टाइप्स ऑफ नेटवर्क, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क
लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड पर्सनल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो किसी एक स्कूल, एक बिल्डिंग या एक छोटे से प्लेस पर हम वायर के थ्रू नेटवर्किंग करते हैं, ओके, इट इज कॉल्ड योर लोकल एरिया नेटवर्क। एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये जैसे कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो अपने सिटी में ब्रांचेस को अटैच करने के लिए नेटवर्किंग करती हैं। ये वायरलेस भी हो सकती हैं और विदाउट वायर भी, वायरलेस और विथ वायर, ठीक है, यानी केबल के थ्रू भी हो सकती हैं। तो ये आपका कहलाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका है कि केबल टीवी, जो केबल टीवी होता है ना, वो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया, क्लियर। एंड वाइड एरिया नेटवर्क, ये तो आप जानते हैं, ऑल वर्ल्ड में जो सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इट इज कॉल्ड योर वाइड एरिया नेटवर्क। एंड पर्सनल एरिया नेटवर्क, जब हम अपने पीसी को यानी लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर को किसी नेटवर्क से हम अटैच करवाते हैं, देन इट इज कॉल्ड योर पर्सनल एरिया नेटवर्क, क्लियर। नाउ इंटरनेट टर्म्स, इंटरनेट टर्म्स में फर्स्ट है आपका वेब पेज। वेब पेज, वेब पेज इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, ठीक है, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड रहती हैं आपके वेब पेज में। वेब पेज यानी जो आप इंटरनेट का पेज देखते हैं, ठीक है, यू कैन सी इंटरनेट पेज इज कॉल्ड योर वेब पेज। एंड वर्ल्ड वाइड वेब, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, यह एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। वर्ल्ड वाइड वेब जो आपको लिंक करता है इंटरनेट से, क्लियर। वेब सर्वर, जो आप किसी पर्टिकुलर कंपनी की वेबसाइट ओपन करते हैं तो वह वेबसाइट उसके वेब सर्वर से अटैच होती है। जैसे आपने जीमेल ओपन किया तो जीमेल जो है उसके जीमेल के सर्वर से अटैच है, तो वो जो जिस सर्वर से अटैच है वो आपका वेब सर्वर कहलाता है, क्लियर। सेम एज इट इज आपका वेब एड्रेस। वेब एड्रेस क्या है? जो भी हम टाइप करते हैं www.google.com, gmail.com, ठीक है, वो आपका वेब एड्रेस कहलाता है। डोमेन नेम, डोमेन नेम जैसे gmail.com, तो .com क्या हुआ? ये आपका डोमेन नेम हुआ। डोमेन नेम यह आइडेंटिफाई करता है कि डिडक्ट करता है कि यह जो वेबसाइट है वह किस पर्पस से बनाई गई। से .com, इट इज अ कमर्शियल पर्पस, .edu एजुकेशनल पर्पस, .gov गवर्नमेंट पर्पस, ठीक है। तो इस प्रकार से जितनी वेबसाइट होती हैं सबका अलग अलग एक डोमेन नेम होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वेबसाइट, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज। वेबसाइट क्या है? आपकी एक बुक हो गई, उस बुक में जितने भी पेज हो गए वो आपके वेब पेज कहलाते हैं। जब आप कोई पर्टिकुलर वेबसाइट ओपन करते हैं तो उस वेबसाइट में बहुत सारे पेज होते हैं और सभी पेजेस जो हैं वह लिंक होते हैं एक दूसरे से, क्लियर, जिसे हम हाइपरलिंक कहते हैं। वेबसाइट में जो पेजेस एक दूसरे से लिंक होते हैं इट इज कॉल्ड योर हाइपरलिंक। ओके, जब आप उसे माउस ले जाएंगे तो माउस आपका हैंड की तरह बनता है, जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, फिर उसमें कोई दूसरा लिंक आपको प्रोवाइड होगा, क्लियर। वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर इज अ विंडो वेयर यू ओपन योर इंटरनेट। इंटरनेट ओपन करने के लिए जो विंडो आपको प्रोवाइड किया जाता है इट इज कॉल्ड योर वेब ब्राउजर। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, यूसी ब्राउजर और क्रोम, मोजिल्ला, ठीक है, ये सब आपके क्या हैं? ब्राउजर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म ऑफ आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस हमने पहले भी बताया कि जितने भी सिस्टम जो वर्क कर रहे हैं विच सिस्टम अटैच टू द नेटवर्क
each and every system have own IP address because when data is sent by the computer, तो जो डेटा सेंड किया जाता है, डेटा एंड IP एड्रेस बोथ विल सेंड टू द डेस्टिनेशन। डेटा के साथ IP एड्रेस भी इनबिल्ट रहता है, और जब IP एड्रेस रहेगा तभी वो डेटा समझ पाएगा कि इस कंप्यूटर में ही हमें डालना है, इनपुट करना है, अदरवाइज क्या होगा, वह मूव करता रह जाएगा। तो डेटा के साथ IP एड्रेस हमारा इनबिल्ट रहता है। क्लियर? नाउ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड मीडिया डिवाइसेस। डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। विदाउट डिजिटल टेक्नोलॉजी आई हैव नो आइडिया। ठीक है, हम कुछ कल्पना भी नहीं कर सकते डिजिटल टेक्नोलॉजी के बिना। जैसे जैसे हमारा सिस्टम इंक्रीज हो रहा है तो उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी इनबिल्ड की जा रही है। जैसे कि आपके कंप्यूटर में एक टेक्नोलॉजी आती है स्पीच रिकॉग्निशन की। स्पीच रिकॉग्निशन इज अ टेक्नोलॉजी वेयर योर कंप्यूटर रिकॉग्नाइज योर स्पीच, यानी आपकी स्पीच को रिकॉग्नाइज करेगा, यानी आप बोलेंगे वह टाइप करता चला जाएगा, या आप सिंपली स्पीच यानी वॉइस के थ्रू कमांड भी उसे दे सकते हैं। क्लियर? इट इज अ स्पीच रिकॉग्निशन। नाउ वेब वीडियो टेक्नोलॉजी। वेब वीडियो टेक्नोलॉजी जो हम इंटरनेट पर अपने वीडियो अपलोड वगैरह करते हैं, ठीक है, दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड योर वेब वीडियो टेक्नोलॉजी। और वह वीडियो इंटरनेट के थ्रू हम एक्सेस करते हैं उसके लिंक वगैरह को, तो इट इज कॉल्ड योर वेब वीडियो टेक्नोलॉजी। नाउ नरेटर। नरेटर भी एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपके विंडोज में इनबिल्ट रहता है। नरेटर जो है वो आपके स्पेसिफिकेशन, नोटिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ों को आपको स्पीच के जरिए रिकॉग्नाइज करवाता है। जैसे आपने जो भी की प्रेस की उस की को वो बोलेगा। जैसे हमने ए प्रेस किया तो बोलेगा ए, ठीक है, बी प्रेस किया तो बोलेगा बी। कोई नोटिफिकेशन आया तो नोटिफिकेशन वह स्पीच के थ्रू हमें बताएगा। क्लियर? नाउ कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। कंप्यूटर सिक्योरिटी, देखिए आजकल तो कंप्यूटर सिक्योरिटी मस्ट हो गई है, ठीक है, क्योंकि यदि आपका कंप्यूटर सिक्योर नहीं है तो आपके कंप्यूटर में कभी भी वायरस अटैक कर सकता है, आपका सिस्टम कभी भी हैक किया जा सकता है। सो व्हेन यू यूज योर कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिक्योरिटी इज मस्ट। ओके, नाउ सबसे पहले इसमें है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल थ्रेट्स। नेचुरल थ्रेट से प्रोटेक्शन के लिए फर्स्ट है आपका रेगुलर बैकअप, यानी आप डे बाय डे अपने कंप्यूटर में बैकअप रखिए। यदि कंप्यूटर कभी आपका हैक कर लिया गया या फिर डैमेज हो गया तो आप रेगुलर बैकअप से अपने डेटा को ला सकते हैं। क्लियर? सेकंड, इंस्टॉलिंग कंप्यूटर इन सिक्योर लोकेशन। अपने कंप्यूटर को एक सिक्योर लोकेशन में रखिए। सिक्योर लोकेशन मीन्स होगा यहाँ पर कि सिस्टम आप अच्छे से रखिए। जैसे आप सिस्टम को डस्ट से बचाइए, ठीक है, उसे ऐसी जगह रखिए जहाँ डस्ट न लगे, बहुत हीट न रहे, उसमें बैटरी रहे, आपके सिस्टम में बैटरी से चलाइए, क्योंकि डायरेक्ट अगर पावर देंगे तो पावर फ्लक्चुएट हुआ तो आपके फ्लक्चुएशन से डेटा लॉस हो सकते हैं। क्लियर? यूजिंग प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, जैसे हमने अभी आपको बैटरी का भी एग्जांपल दिया, तो वो भी आपका प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है। लाइट का फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये सभी आपके इसमें आएंगे। यूजिंग प्रोटेक्टिव डिवाइस। प्रोटेक्टिव डिवाइस मतलब अपने डिवाइस को प्रोटेक्ट करिए, मीन्स एंटीवायरस डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके सिस्टम में
वायरस अटैक नहीं करेगा। क्लियर? नाउ लिस्ट ऑफ ह्यूमन थ्रेट्स। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ह्यूमन थ्रेट्स। डिवाइस थेफ्ट्स, आइडेंटिटी थेफ्ट्स। डिवाइस थेफ्ट्स जैसे आप सिस्टम वर्क कर रहे हैं, कोई आपका सिस्टम ही ले गया, कोई माउस ही निकाल के ले गया, कोई हार्ड डिस्क निकाल के ले गया, तो ये क्या है आपके डिवाइस थेफ्ट हो गए। आइडेंटिटी थेफ्ट मीन्स कि जैसे कोई आइडेंटिटी आपकी थेफ्ट कर ली जाए, जैसे जैसे कोई कार्ड आप यूज करते हैं, ठीक है, एटीएम कार्ड का किसी ने पासवर्ड हैक कर लिया, पासवर्ड जान गया, ठीक है, तो आपके एटीएम कार्ड को वह मिसयूज कर सकता है। सॉफ्टवेयर पायरेसी, आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वह जेन्युइन यूज करिए, पायरेसी मत यूज करिए। जैसे आप बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वायरस जो है एंटीवायरस जो है इंटरनेट पर फ्री है, 1 महीने की ट्रायल पर है, चलिए हम 1 महीने का ट्रायल एंटीवायरस ले लेते हैं, ठीक है, तो वो सभी क्या है, वो आपके पायरेसी में आते हैं, उसका यूज मत करिए, ठीक है, वरना आपके सिस्टम को वायरस अटैक कर सकता है और हैक भी कर सकता है, ठीक है। वायरस वॉर्म एंड ट्रोजन हॉर्सेस, अपने सिस्टम को वायरस से बचाइए। बहुत सारे वायरस होते हैं, वायरस वॉर्म्स होता है, ट्रोजन हॉर्सेस होते हैं, ठीक है, तो इनसे बचने के लिए अपने सिस्टम में क्या इनपुट करेंगे, एंटीवायरस। इंटरनेट स्कैम, आजकल इंटरनेट पे बहुत सारे स्कैम चलते हैं, कोई लॉटरी वगैरह का भी आपको बताता है कि आप कितनी लॉटरी लग गई है, ठीक है, 25 लाख की लॉटरी लगी हुई है, आप हमें अपना बैंक अकाउंट नंबर वगैरह सेंड करिए, तो आप सेंड कर देते हैं, तो आपका क्या होता है, पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। इस टाइप का स्कैम वगैरह बहुत सारे चल रहे हैं आजकल, ठीक। नाउ प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर अगेंस्ट ह्यूमन थ्रेट्स। फर्स्ट इज द स्टोर डेटा सेफली, आप डे बाय डे उसका बैकअप रखिए, अपने डेटा को हमेशा सेफ रखिए बैकअप में, ठीक है। डेटा इंक्रिप्शन, डेटा इस फॉर्म में रखिए कि वह आपके लिए रीडेबल हो, अदर के लिए न हो। इसके लिए इंक्रिप्शन का एक सॉफ्टवेयर अलग से आता है। यदि आपके डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है तो डेटा आप इंक्रिप्ट कर लीजिए, वह डेटा इंक्रिप्ट होने पर कोई से रीड नहीं कर पाएगा, ठीक है। इंस्टॉलिंग फायरवॉल, हमेशा अपने सिस्टम पर फायरवॉल इंस्टॉल करके रखिए। फायरवॉल क्या करता है कि अनऑथराइज्ड यूजर को एक्सेस नहीं करने देता। क्लियर? कीपिंग कंप्यूटर में सेफ इन्वायरमेंट, अपने कंप्यूटर को सेफ इन्वायरमेंट में रखिए। यहाँ पर इन्वायरमेंट मीन्स बैटरी का यूज करिए, लाइट फ्लैक्चुएशन ऐसी ना हो, ठीक है, कि आपके डेटा लॉस हो जाए। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, और यदि कुछ क्लियर ना हुआ हो तो इस वीडियो को फिर से आप एक बार देखिएगा, ठीक है, फिर आप अपना पेपर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।